जैसे कि आपने कहा यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर सर्टेन पीरियड, यू हैव गॉन थ्रू द मैरिज, मदरहुड एंड एवरीथिंग। तो मैम मुझे ये पूछना है, आपको क्या लगता है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जो चैलेंजेस वुमेन फेस कर रही है उनको वो कैसा टैकल कर सकते हैं? प्रोफेशनल लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, फर्स्ट इज विमेन डू नॉट नेटवर्क लाइक मेन डू ओके when in entrepreneurship, so learning the art of networking. Second is the family aspect of it, कि बच्चों को कैसे हैंडल करे, पति, फैमिली, बट एवरीबडी नीड्स टाइम। पर्सनल लाइफ में अ वुमन गोज थ्रू 3 M's. फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन, मैरिज, मदरहुड, थर्ड इज मेनोपॉज। मेनोपॉज में भी वापस बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी अभी बहुत सारे फील्ड्स मेल डोमिनेटेड है इंडिया में, तो ऐसा क्यों है? सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। जैसे अभी परसों मैं गई थी टाटा मोटर्स में, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक विंग ओपन किया है जहाँ पे 15% वुमेन एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे ऑन द फैक्ट्री सेटअप भी। फिर बहुत से जगह पे मैं देख रही हूँ कि है विमेन काफी सारी है। आपको कौन से देश में वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज्यादा स्कोप दिखता है? अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मैं इंडिया की फैन हूँ। Oh, is it? सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे इंडिया से होलिस्टिक वेलनेस आया, इंडिया से स्पिरिचुअल वेलनेस आया, वैसे ही इंडिया से मुझे ग्लैमोवेल वेलनेस लाना है। How did you build that self confidence कि मैं ये कर लूंगी? हर इंसान के 3 पर्सनालिटीज होते हैं, ड्रीमर, डूअर और क्रिटिक। हम जब खुद के बारे में बहुत ज्यादा सपने देखते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, और जब ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो खुद को क्रिटिसाइज करके नीचे भी लाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होते रहता है। जी। डूअरशिप इज द राइट वे। You are the perfect definition of what is woman empowerment in India. Hello everyone, this is Nikhil Maure and I welcome you all to the Nikhil Maure Show. There are some people, those who build businesses and career, but there are very few people, those who build legacies. लेकिन आज के मेरे जो गेस्ट है उन्होंने ये दोनों चीजें अचीव की है। Not only this, she has an experience of more than 2 decades in medical and the wellness industry, and also she is a MBBS and DA, and with that she is owner director of Punde Hospital. She is a founder chairman of Prolux Wellness and Studio Private Limited. She has written 25 books on glamour wellness. She got 3 copyrights and 1 patent. She got her own app by the name Prolux Wellness, which is awarded with Biotech Service Award by Microbiologist Society of India. She got tremendous award and recognition, and this podcast is not enough to tell you all of this. But what I admire the most about her is not just their success, it's their mindset. So if you are a woman entrepreneur, a leader or someone who is looking for an inspiration, तो ये podcast आपके लिए रहने वाला है. So let's dive in and learn from one and only Dr. Prachiti Punde. So Prachiti ma'am, thank you so much for coming to my podcast. It's an absolute pleasure. Thank you so much for coming. So ma'am, मैं आपका वैसे तो मैं already आपका introduction दे चुका हूँ, but I want कि आप अपना एक crisp introduction दे within a minute if you could. Okay, I always say कि हमारे पैशन और प्रोफेशन में डिफरेंस समझिए तो आपकी करियर सेट हो जाएगी. Okay. So I'll give my introduction in that way. Okay. कि hi, this is Dr. Prachiti Punde. By my profession, I'm a doctor and anesthetist. मैंने MBBS किया है, KEM से anesthesia किया है. By my passion in life, I'm a model, actress, Mrs. India, Mrs. Universe, Australasia. I won against 90 countries of the world. मैंने कुछ फिल्म्स और सॉन्ग्स किए हैं. But by my life purpose, I'm a certified life coach. मैं ग्लैमोवेल इंस्टीट्यूटर हूँ और मैंने नेशनल इंटरनेशनल पेटेंट लिया है फॉर ग्लैमोवेल. Very nice. I am the founder director of Prolux Wellness and Productions. Yes, that I already told in the introduction, ma'am. But thank you so much for such a crisp introduction. Ma'am, I'll start with my first question, and this is very important for me because, ma'am, I want to promote women entrepreneurship in India. Okay. So, ma'am, you were already a successful doctor, anesthetist. Even after that, you pivoted into entrepreneurship. Right. What is the reason and how was the journey so far? So actually, I'm a born and blessed spiritual child, Okay. which went into medical. I did my doctor studies, MBBS studies. Then I did anesthesia. बट उसके बाद ना कहीं वेलनेस क्या है. एलोपैथिक मेडिसिन इज नॉट वेलनेस बिकॉज इट इज नॉट अ क्यूरेटिव मेडिसिन. फिर उसके बाद आगे और डीप डाइव करते करते मैंने 25 किताबें लिखी, बुक्स लिखी. ग्लैमोवेल का मैंने, जैसे होलिस्टिक के बाद स्पिरिचुअल वेलनेस आया, स्पिरिचुअल के बाद ग्लैमो वेलनेस लेके आई. बट अभी ग्लैमो वेलनेस का पेटेंट मिल गया, मोबाइल ऐप बन गया, बुक्स लिख दिए.
बट उसके लिए एक सिस्टम चाहिए जो लोगों को समझे, जो बताए. एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई Okay. एस्टैब्लिश्ड प्रोलक्स वेलनेस एंड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड to, because Prolux is glamour well in action. Prolux is a way of life. That's why I entered entrepreneurship. But it's a difficult journey. Okay. Ma'am, your MBBS, your DA, you founded Prolux Wellness. Right. Then you have written 25 books, 3 Yes. copyrights, 1 patent. I mean, there's so many things that you do. Right. But how are you able to manage your personal life and your professional life? So all of this is with the flow. जब हम Okay. बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ, आई से इट एज वर्क लाइफ हार्मनी. सो देयर इज नथिंग कि दोनों पैरेलली अच्छे चल रहे हैं. जी. कभी कभी जिस वक्त जहां जिस चीज की जरूरत है वहां पे आप थोड़ा फोकस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तब जी. मुझे उन पे ध्यान देने की जरूरत थी, तो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस थोड़ी कम कर दी और फिर मैं बच्चों के लिए ध्यान करने लगी. बट उसको ध्यान देते देते क्या हुआ, मैंने वेलनेस के बारे में काफी रिसर्च भी किया, बुक्स कुछ नोट्स वगैरह लिख के रखे थे मैंने 2010 में. 2005 में मेरी बेटी हुई, तब भी मैंने लिख के रखे थे. ठीक है. बट उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे बड़े हो गए, बट देन आई स्टार्टेड राइटिंग दोज बुक्स. मेडिकल प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा दी, ग्लैमोवेल थोड़ा रिसर्च कर लिया, Okay. उस पे आ गया. बट वो करते करते सब अपना ध्यान दे रहे थे. अब उसके आगे जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में व्हेन आई एस्टैब्लिश दिस कंपनी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. एंड आई वांटेड कि अभी मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत कमा लिया, जो भी मेरे शेयर्स थे या गहने थे वो लॉकर में रख के मैं क्या करूंगी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ व्हाट आई वांट इज क्रिएट अ लेगेसी की जिस चीज की वजह से मेरा लाइफ अच्छा हुआ, इजी हुआ. ग्लैमोवेल इज ऑल अबाउट 3 to 30 सेकेंड टूल्स की मल्टीटास्क आप कर सकते हैं, बट सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. इसलिए मैं प्रोलक्स में एंटर हुई. देन मैंने मेरी फैमिली मीटिंग ली. Okay. वैसे तो मैं हर संडे लेती हूँ, Okay. बट मैंने बच्चों को, पति को बिठाया, उनको समझाया कि भाई मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर रही हूँ, तो वर्क लाइफ हार्मनी कुछ रहने नहीं वाली है. मुझे 24 आवर्स वहां पे ध्यान देना पड़ेगा. तो फर्स्ट ईयर में भी 2 साल के लिए आई सपोर्टेड माई हस्बैंड फॉर ऑलमोस्ट 18+ years. आई टुक अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम कि तुम्हें मुझे 18 साल सपोर्ट करना है. वो डर गए, बोले कि भाई 10 साल करूंगा, 18 साल बहुत होते हैं. आई सेड ओके. बच्चों से मैंने प्रॉमिस दी कि अब तुम दोनों सेटल्ड हो चुके हो, नाउ इट इज टाइम कि आई नीड योर सपोर्ट. सो अभी भी जब मैं घर जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मम्मा पानी ला के दूं क्या. मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो वो बोलते हैं मम्मा ऑल द बेस्ट. सो दैट इज हाउ यू क्रिएट सिस्टम्स टू बैलेंस बोथ द एस्पेक्ट्स. फर्स्ट यू गिव, देन यू आस्क, हक से मांगो, वो मिलेगा ही मिलेगा तुमको. दैट्स हाउ यू क्रिएट लाइफ, बट इट टेक्स पेशेंस. ये बोलना जितना आसान है ना, 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं एक चीज को कन्विंस करने के लिए. ऐसे नहीं कि एक मीटिंग में सब तैयार हो गए. इट टुक मी लाइक ऑलमोस्ट 6 months, बट इट डिड हैपन, बट विद पेशेंस एंड लव. झगड़ा करके नहीं. You have to be like non-react. डेफिनेटली मैम, रियली वुमेन्स को बहुत चैलेंजेस है और ये पॉडकास्ट भी आज का उसी पे है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और जो वुमेन लेड बिजनेसेस है उनके चैलेंजेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं एंड हाउ दे कैन अचीव समथिंग इन देयर लाइफ इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो मैम मुझे ये पूछना है, आपको क्या लगता है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जो चैलेंजेस वुमेन फेस कर रही है उनको वो कैसा टैकल कर सकते हैं? वैसे तो आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया है बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम, बट स्टिल यस, चैलेंजेस वी कैन डिवाइड इट इन 2 to 3 एस्पेक्ट. फर्स्ट इज पर्सनल लाइफ में थोड़े चैलेंजेस. पर्सनल लाइफ में अ वुमन गोज थ्रू 3 M's. फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन, मैरिज, मदरहुड. थर्ड इज मेनोपॉज. मेनोपॉज में भी वापस बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट राइट नॉलेज बहुत अवेलेबल है. आजकल की विमेन ने हेल्प लेनी चाहिए. शी शुड आस्क फॉर हेल्प. डॉक्टर्स के हेल्प लो. अगर मेनोपॉज आ रहा है तो एस्ट्रोजन कहाँ से लूं वगैरह. सो फर्स्ट चैलेंज है पर्सनल लाइफ. सेकेंड इज द फैमिली एस्पेक्ट ऑफ इट, कि बच्चों को कैसे हैंडल करे, पति, फैमिली. बट एवरीबडी नीड्स टाइम. सो थोड़ा कम एम्बिशियस होइए. गिव सम टाइम टू द सिस्टम, टू योर ओन सेल्फ. और जैसे मैंने प्रोलक्स पहले दिन ही नहीं सक्सेसफुल हुआ ना, इट टुक 2 years 3 years. बिल्डिंग बनने में टाइम लग गया, कंस्ट्रक्शन में लग गया, या फिर स्टाफ मिलने के लिए टाइम लगा. तो हैव सम पेशेंस. वो टाइम पूरा वहीं पे नहीं देना है आपको. स्विच ऑफ और स्विच ऑन भी होना है. ठीक है, पहले 6 महीने मुझे 24/7 देने पड़े, तो आई वॉज देयर, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि आई हैव क्रिएटेड सिस्टम्स एट होम. ठीक है, तो वो होम का हो गया आपका. अभी प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस पे बात करते हैं. प्रोफेशनल लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, फर्स्ट इज विमेन डू नॉट नेटवर्क लाइक मेन डू when in entrepreneurship. So learning the art of networking, that's a challenge. That is still a challenge, right? Another thing is जो systems बने हैं कि एक women जब drive करती है, अपने आप आता ही है,
है ना दिमाग में, जी, या जितने जोक्स चल रहे हैं वो सब विमेन बेस्ड ही चल रहे हैं. सो दैट इज अ फैक्ट. बट इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस विद इन यू और आपको लगता है तो शिद्दत के साथ वो चीज करो. बहुत अच्छे लोग भी हैं. कई ऐसे मैन, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि 5 ही पांडव है, ढूंढ ढूंढ के देखने पड़ते, कौरव तो 100 मिलेंगे. बट जो 5 पांडव है उन पे फोकस करो तो शायद प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी बन जाएगी आपकी. ओके. मैम, जैसे कि आपने कहा यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर सर्टेन पीरियड, यू हैव गॉन थ्रू द मैरिज, मदरहुड एंड एवरीथिंग. यस. Ma'am, then you decided to start an entrepreneurship, and you know that that's a 24/7 job. राइट. But how did you build that self confidence कि मैं ये कर लूंगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कैसे है, व्हेन यू गो इन द फ्लो स्टेट. जैसे मैंने पहले जी. मेरा घर, मतलब मेरे मम्मी पापा का घर, मेरी मदर का फैशन डिजाइनिंग कॉलेज था, वहां पे मुझे मेरे स्किल्स समझे. राइट. तो हम क्या करते हैं, हर इंसान के 3 पर्सनालिटीज होते हैं, ड्रीमर, डूअर और क्रिटिक. हम जब खुद के बारे में बहुत ज्यादा सपने देखते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, और जब ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो खुद को क्रिटिसाइज करके नीचे भी लाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होते रहता है. जी. डूअरशिप इज द राइट वे. सीसॉ के बीच में है डूअरशिप. Okay. तो जब मैंने मम्मी के कॉलेज में काम किया, मुझे समझा कि भाई ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, ये मेरे वीकनेसेस है, उनको एक्सेप्ट कर लो. स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके उनको बढ़ाओ, वीकनेसेस को एक्नॉलेज करो, तो आप ग्राउंडेड रहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाओगे, और वीकनेसेस को देखते देखते आप टैकल कर सकते हो. फिर मैंने जब हस्बैंड के हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, खुद का हॉस्पिटल है हमारा, तो वहां पे कुछ अच्छी चीजें समझी. सोशल वर्क में मेरे बहुत सारे एनजीओ थे, मेरी खुद की एनजीओ है 1200 विमेन की. फिर वहां पे मुझे लोगों की हैंडलिंग समझा, स्टाफ हैंडलिंग समझा, तो मुझे पता चला कि भाई ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, इनके बेसिस पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सकती हूँ. और वो ट्रस्ट मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को दिया, खुद को दिया, तब जाके मेरा स्टेबल ग्राउंड ऑफ कॉन्फिडेंस बना. कॉन्फिडेंस बनता है सिर्फ दिखाने से या अच्छी स्पीकिंग से या कम्युनिकेशन से नहीं, वो अंदर से आना चाहिए, जहां पे आपको आपके स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस पता है, एंग्जाइटी नहीं होगी आपको. मैंने बहुत अच्छा बोलना सीख लिया, तो कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं. जब भी कॉन्फिडेंस इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज योर लर्नड इमोशंस एंड टेम्ड इमोशंस. टेम योर स्किल्स. जब भी वक्त आता है, वो टेमिंग यानी क्या, जैसे हम जानवरों को पालते हैं उसको टेमिंग कहते हैं. तुम्हारे जो भी स्किल्स है इतने टेम हो जाने चाहिए, जब जरूरत है आ जाना चाहिए बाहर. दैट इज कॉन्फिडेंस. वो कैसे आता है? रिपीटेशन. हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिपीटेशन के साथ सीखता है, वो सोच के नहीं सीखता, देख के नहीं सीखता. आपको पहली बार गलती होगी, दूसरी बार होगी, और एक्सपीरियंस आएगा, और गलती को मैं एक्सपीरियंस बोलती हूँ. डेफिनेटली. तो यू हैव टू गेट इनटू द रेल्म ऑफ कॉन्फिडेंस, द कोर ऑफ कॉन्फिडेंस. दैट्स हाउ यू बिल्ड इट. ओके. So, ma'am, actually, you were a doctor, then you got into wellness. You have vast experience in all the wellness and the medical industry. Ma'am, definitely there is a chance, or I don't know. I just wanted to know what was your experience. Did you ever had a chance to see any gender stereotypes in your life? Gender stereotypes अभी for me that is something which I don't usually see, क्योंकि मैं बचपन में 2 साल में ही भजन गाती थी. 8 साल में मैं आश्रम गई, तो मेरा ब्रेन ऐसे ट्यून्ड हो गया ना कि हम सब एक है, यूनिवर्सल वननेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो भी आता है हमारे सामने, दैट इज आवर मिरर इमेज. कि अगर मेरे लाइफ में कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप आ भी गया, तो इट इज फॉर मी टू लर्न समथिंग कि ये क्वालिटी मुझ में नहीं है, या ये क्वालिटी को मुझे फाइट करना है, या ये क्वालिटी को मुझे हैंडल करने का तरीका नहीं पता है, और मैं वो सीखते गई. बिकॉज लाइफ इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज वाइब्रेशंस, विच इज इमोशंस. इंसान में इमोशंस है, वही वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है. तो हमें कुछ भी फियर आता है, डर आता है, तो आप डर के आगे जीते हैं. हम बोलते हैं कि वो चीज तुम करो, जिस चीज का डर लगता है वो चीज तो पहले करो. तो वहां पे तुम्हारा सक्सेस 90% रेशो है लाइफ में सक्सेस अचीव करने का. सो दैट्स हाउ आई डोंट यूजुअली एक्नॉलेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट येस, रियलिटी इज रियलिटी. वी नीड टू सी एंड एक्नॉलेज कि ओके, दीज आर द challenges that a women can face. This is the gender stereotype that is happening, and now मैं वो तो नहीं कंट्रोल कर सकती, मैं मेरा डिसीजन कंट्रोल कर सकती हूँ. तो what it gives me patience, it gives me non-reactive approach, it gives me टाइम टू बैलेंस माई. ठीक है, मेरा यहाँ पे मैं बहुत स्पीडीली नहीं भाग रही ना मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से, मैं घर में वो टाइम दे रही हूँ ना मेरे बच्चों को. सो आई एम लिविंग माई लाइफ. इट गिव्स मी द वे ऑफ लाइफ to balance and give time to everybody. Then I don't run behind what is not possible. That is insightful, ma'am, and definitely it will help the women, those who want to do entrepreneurship in India. Ma'am, I want to ask you,
आपको लगता है इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वुमेन के लिए? सी इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मतलब अभी वुमेन्स डे चल रहा है, मार्च चल रहा है। Definitely. मैं 28 फरवरी से एवरीडे 3-4 इवेंट्स कल तक कर ही रही थी, ठीक है। Okay, आज मैं very पॉडकास्ट nice. के लिए आई हूँ यहाँ पे। जी तो हर रोज मैं वही सुन हम्म। सुन के आ रही हूँ कि ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स है। मैं हम्म। नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वाई? बिकॉज मेन आर बॉर्न डिफरेंट, विमेन आर बॉर्न डिफरेंट। अनदर थिंग इज जो समाज बना है वो एवोल्यूशन के लिए बनता है। जब अभी विमेन हैज ऑल द क्वालिटीज इन हर, मल्टीटास्किंग है, बाकी सारी चीजें हैं, बट एक ही क्वालिटी क्या नहीं है, वो है इमोशनल रेगुलेशन। वो इमोशनल रेगुलेशन जब आ जाएगा हमें, तो हम ये समझ पाएंगे। और इतने दिनों से मैं यही बोल रही हूँ, विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। उनको एम्पावरिंग करने की या इक्वल राइट्स देने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ओन कैपेबिलिटीज। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बाहर से एडमिरेशन और अप्रिसिएशन मिलने के बजाय हम खुद ही खुद को अप्रिशिएट करें, खुद में कॉन्फिडेंट रहे और एम्पावर्ड रहे। आपने पूछा था कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को जोड़ चाहिए पावर की। पावर कहाँ से आती है? आपके पास घर चाहिए, खुद का पैसा चाहिए, खुद की कार चाहिए, एक पावरफुल राजा का चेयर चाहिए आपके पास। सो क्रिएट कॉन्फिडेंस विद पावर। वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, शी शुड अंडरस्टैंड, एंड देन शी नीड्स टू क्रिएट अ टेबल, हर ओन टेबल, जहाँ पे मैन आके बोले कि भाई हमको भी जगह दो। So why wait Very for nice. equal rights? Create your own table and give that table to others. This is empowering, ma'am. Trust Yeah. me. So, ma'am, actually, for me, the definition, you're the perfect definition of what is woman Thank you so empowerment much. in Thank you. India. But मैं जानना चाहूँगा, मैम, according to you, feminism क्या है? नहीं, अभी फेमिनिज्म की हमें जरूरत नहीं है। सबसे पहले, एज पर मी, सी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। वी ऑल हैव आवर अप्स एंड डाउन्स, एंड विमेन को फिजिकल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस थोड़े ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ। बट जब हम फिजिकल चैलेंजेस होते बोलते हैं ना, तो एक तरफ ये भी है कि विमेन ही है जो बर्थ देती है ना, नया बर्थ बोलते हैं, नारी का नया जन्म बोलते हैं। सो शी इज ऑलरेडी फिजिकली ऑल्सो एम्पावर्ड। तो फेमिनिज्म एज सच बहुत उसका अच्छा यूज भी किया गया है, थोड़ा बुरा यूज भी किया गया है। लेट्स स्टे इन बैलेंस। आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन बैलेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा महिला एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे को आगे बढ़ाए और जज ना करे। जैसे हम कार से जा रहे हैं तो कुछ पेड़ मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनको अच्छा बोलती हूँ, बट जो अच्छे नहीं लगते उनको मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो वैसे ही विमेन को बस इतना ही करना है कि ये नहीं करना है चीजें, और बहुत ज्यादा हक के लिए लड़ने के बजाय अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करने में अगर टाइम बिताएंगे, जैसे मैं अगर मोर्चा निकाल रही हूँ, मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स वो जरूरी है। मुझे लगता है दो हाथ होते हैं हमेशा। एक नारी जो होती है वो दिए समान होती है, ठीक है। अब इस दिए को प्रोटेक्ट करना है तो दो हाथ लगेंगे। सबसे पहला हाथ क्या है? समाज का, ठीक है। अब समाज का वो कैसा समाज चूज करती है वो भी उसी पे डिपेंडेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ वो जगह तब तक खाली रखो समाज की जब तक तुम्हें अप्रिशिएट करने वाले, अपलिफ्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले और तुमको तुम्हारे स्ट्रेंथ्स की याद दिलाने वाले, वीकनेस की याद दिलाएंगे बट अच्छे के लिए, ऐसे लोग जब तक लाइफ में नहीं आते अपने, चाहे वो पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, फैमिली हो, आपका कोई पार्टनर हो, एसोसिएट हो, कलीग हो, स्टाफ हो, वो जगह खाली रखो तब जब तक ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। अकेले आगे बढ़ो। दूसरा हाथ होता है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जैसे आजकल विमेन पे बहुत सारे जोक्स होते हैं या विमेन पे कुछ क्रिटिकल चीजें आती है, तो मैं चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को भी हम थोड़ा सा ये करें, गवर्नमेंट को अप्रोच करें, बाकी चीजों को अप्रोच करें विद द राइट वे, राइट टेक्निक्स, टेक द राइट हेल्प। और ये दो हाथ अगर आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैन को भी बहुत जरूरत होती है कभी कभी। डेफिनेटली मैम, आई एग्री विथ यू। सो जैसे कि मैम आपने कहा कि देयर इज टू थिंग्स, एक लॉ एंड ऑर्डर है और एक सोसाइटी है। यस मैम, इन द सेम वे वुमेन या फिर कोई भी मैन वुमेन इन अ सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग, देयर इज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अभी जैसे मैम एक रिसेंट केस हुआ है वेयर द क्रिकेटर एंड हिज पार्टनर गॉट डाइवोर्स्ड, एंड फिर उस पे बहुत से लोगों ने गोल्ड डिगर ये सब कमेंट्स किए। राइट। At the same time, there are women, those who are doing something on their own. They are an entrepreneur. There are few cosmetics brands जिनकी जो founder है, she's a woman. Right. So मैम दो side है coin के। Yes. लेकिन what I want to ask कि
अभी जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात होती है, हम्म इंडिया में कितना इम्पोर्टेंट है वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? सी इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे, जैसे आई बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया कोरियन इंडिया जापान डिप्लोमेटिक सेलिब्रेशंस, ओके। आई हैव अ लॉट ऑफ कोरियन फ्रेंड्स। तो हमें लगता है कि इंडिया में ही औरत सबसे ज्यादा अबला है, बेचारी है, ऐसे नहीं है। आप Okay. जापानीज औरतों को देखिए, आप कोरियन औरतों को देखिए, ओ माय गॉड, वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। Is it? या I thought- लाइक एंड आई हैव बीन टेलिंग टू माय बिग शॉट एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स आल्सो, लाइक दे वर लाइक सीरियसली, लाइक बट ऐसे होता है। जैसे मैं थी, सो आई वाज विद अ जापानीज लेडी, उसकी एक छोटी बेटी थी, और उनके पापा इतने बूढ़े, इतने खराब दिखने वाले, और उस छोटी सी बेटी को उन्होंने बोला कि पोएम बताओ, लाइक यू नो जापानीज में बोला कि आंटी को पोएम। तो वहां पे मैंने देखा कि वो टोज ऐसे ऊपर करेगी और नीचे आंखें, मतलब बचपन से उनको इतना डोमिनेट किया गया है। एंड देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग। फिर हम खाना खाने बैठे, वो नहीं क्या नीचे बैठते ऐसे राइस वगैरह लेके, तो फिर उसके पापा का खाना खत्म हुआ तो उसकी मम्मी वाज लाइक गिव इट टू पापा, गिव इट टू पापा, मतलब 6 साल की बच्ची, और वो अपना खाना लेके पापा को दे रही है। My God. सो इतना वहां पे भी है, हमें लगता है बस इंडिया में है, बट वहाँ उन देशों में सबसे ज्यादा है, जितना हम में नहीं है ना I उतना didn't है know वहाँ पे। इतना है. नहीं, Actually, बहुत that's है। an eye opening. या और इंडियन लेडीज को फिर भी बहुत फ्रीडम है, मैं कहूंगी। और फाइनेंशियल देखो, अगर हम इक्वल राइट्स मांग रहे हैं तो इक्वल मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि बच्चा अपना हस्बैंड संभाले तो आप भी वही कमाओ, ठीक है, या तो दोनों में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट उतना है नहीं तो खुद भी कमाओ, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर आई वांट टू टेल ऑल द विमेन इज, विमेन हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ नर्चरर। प्लीज अपने बच्चों को टाइम दो। इट कांट बी कि अ मैन कैन हैंडल अ बेबी, ही कैन हैंडल, बट यू हैव टू गिव इक्वल लव, केयर, सपोर्ट टू योर चाइल्ड, अदरवाइज वो ट्रॉमा में चला जाएगा। Okay. Ma'am, thank you so much for such a wonderful answer, and it was an eye opening because I didn't know. I thought कि इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, but when it is happening in a developed country. I have many Korean friends, many. I sit with them, eat. Okay. I have stayed with them. Yeah. Ma'am, I want to ask you, equal opportunity मिलने पे भी अभी बहुत सारे fields male dominated है इंडिया में, तो ऐसा क्यों है? और Hierarchy ये है। हाँ, तो ये सिचुएशन को कैसे चेंज किया जा सकता है? सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। जैसे अभी परसों मैं गई थी टाटा मोटर्स में, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक विंग ओपन किया है जहाँ पे 15% वुमेन एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे, ऑन द फैक्ट्री सेटअप भी। फिर बहुत से जगह पे मैं देख रही हूँ कि है विमेन काफी सारी है, बट अगेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी, एंड इट इज नॉट ओनली कि क्या बोलते हैं हम, एक इक्वालिटी या इक्वल पावर, बट उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एक फीमेल के लाइफ में थोड़े ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तो कितना जॉब शिद्दत के साथ कर सकती है, कितना नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। प्लस चैलेंजेस तो है, दैट इज अ पार्ट, आई डू एग्री विद दैट। थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स विल चेंज, बट अभी जो मार्च का ये दिया गया है, दैट इज एक्सेलरेट एक्शन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा, यूनाइटेड नेशंस जो हर साल एजेंडा देता है, इस साल का वुमेन्स डे का एजेंडा था एक्सेलरेट एक्शन, क्योंकि 2158 साल लग जाएंगे इक्वल आने में। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इक्वल कब होगा, तो 2158 तक राह नहीं देखनी है, तो एजेंडा एक ही एक्सेलरेट एक्शन। हम सबको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। वीमेन हैव टू टेक चार्ज, मेन हैव टू ट्रस्ट इन अस एंड गिव अस द प्लेटफॉर्म्स। वी नीड टू ट्रस्ट इन अस एंड क्रिएट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स एंड मूव अहेड। एंड इमोशनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है सबके लिए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि देयर आर चैलेंजेस फॉर द वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड बिजनेसेस, तो आपको क्या लगता है कि वुमेन ने सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड बिजनेसेस ही करने चाहिए या फिर उन्होंने अदर फील्ड्स भी एक्सप्लोर करनी चाहिए? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सी एक मतलब हर बार हम बोलते हैं कि 2 पहिए होते हैं, एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं वगैरह, बट एवरीथिंग इज नीडेड, यू नो। मेन हैव सर्टेन क्वालिटीज, फीमेल्स हैव सर्टेन क्वालिटीज। ऑफ कोर्स हर फील्ड में अगर फीमेल आती है तो उसका जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो ज्यादा अच्छे से मिलेगा उस कंपनी को। सो वी नीड बोथ द एस्पेक्ट्स, वी नीड अ मस्कुलिन एस्पेक्ट एज वेल एंड द फेमिनिन एस्पेक्ट एज वेल। मैम, कंपेयर टू इंडिया, आपको कौन से देश में वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज्यादा स्कोप दिखता है और वहां से हमें क्या सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है? Because you have been to Korea, Japan, you are being into that my niece space. stays in Australia also. Okay, great. But then apart from all of this, मैं इंडिया की फैन हूँ।
Oh, is it? या सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे इंडिया से होलिस्टिक वेलनेस आया, इंडिया से स्पिरिचुअल वेलनेस आया, वैसे जी। ही इंडिया से मुझे ग्लैमोवेल वेलनेस लाना है। Okay. एंड इंडिया हैज लाइक नॉलेज, अगर हम बोलते हैं महान भूमि बोलते हैं, महान सेंट्स बोलते हैं, तो वो सब इंडिया से आए। सो इफ वी हैव born on this earth, on this beautiful India, इस धरती पे अगर हमने जन्म लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा स्कोप हमें क्रिएट करना होगा। Okay. I as a woman also have that responsibility along with my other women friends. Let's create a beautiful place here in India itself. हमने यहाँ पे जन्म लिया है Very ना, तो nice. we Yeah, owe this. true. यष्टि समिष्टि हम बोलते हैं संस्कृत में। Okay. यष्टि यानी व्यक्ति, समिष्टि यानी समाज। Okay. जब समाज हमें, हम बचपन में हम खाना पीना खुद के हाथ से तो नहीं खा सकते, समाज हमें पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, धान्य, सन, धूप, अर्थ, जी। ये सब हमें जहाँ से मिलता है उससे वापस देने का Hmm. कर्म करना हमारा धर्म है। Okay. तो Very nice. ma'am. that is what is real life actually. I think you got a vast things. You got a vast learning of every Right. field. I guess so. This is a very new for me. Yashti, Samishti, whatever Yes. you said, but मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपसे सीखने लायक है ये चीज़ों में। मैम, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बहुत बार वुमेन बॉस होना ये मेल ईगो को हर्ट करता है, हाँ, और ये तो उसके है। कारण वुमेन को बहुत चैलेंजेस फेस करने आते हैं। पड़ते हैं इन देयर फील्ड, इन द कॉर्पोरेट। आपको क्या लगता है कैसे वुमेन इस चैलेंजेस से डील कर सकते हैं? ये चैलेंज तो मुझे भी बहुत आता है, ठीक है, बट मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो दे आर वेरी नाइस। आपको सबसे पहले तो एक विमेन को नॉन रिएक्टिव रहना सीखना है। जी। मतलब जो एक टैग या लेबल लगाए ना कि अरे हो गए इसके इमोशनल ड्रामे शुरू, या इसकी आवाज ऐसी होगी, तो वी नीड, व्हेन वी आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वी नीड टू थिंक लाइक मेन। ठीक है, मेन क्या करते हैं यूजुअली कि जो है वो है एज इट इज, वो इमोशन नहीं अप्लाई करते, या फिर वो उसको आगे पीछे का नहीं, पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं बताते कि तुमने ऐसे किया था तो ऐसे हुआ था। तो जब भी मैं किसी एम्प्लॉय को डांट रही हूँ तो मैं उसका पिछला हिस्सा नहीं निकालूंगी, जो जब है तब का उतना ही उनको बताना है, वहीं पे स्टॉप होना है। विमेन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है ना, तो बहुत लंबा खींचती है चीजों को। सो बी क्रिस्प, बी शॉर्ट, ब्रीफ इट, है ना। तो ये चेंजेस जब हम हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल में करेंगे, हमारा इमोशनल रेगुलेशन जब अच्छा हो जाएगा, हम नॉन रिएक्टिव अप्रोच के साथ रहेंगे, ना ज्यादा स्माइलिंग चाहिए, ना ज्यादा सीरियसनेस चाहिए। जब हम थोड़ा बैलेंस तरीके से खुद को ढाल लेते हैं उस हैबिट में, तो देन यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर मेल एम्प्लॉइज ऑल्सो, फॉर योर मेल बॉसेस ऑल्सो। लाइक I have seen so many men want to learn from me. They feel inspired to take action because of me. And another thing is, you cannot be friendly वहाँ पे. See, we have to differentiate कि ये मेरा business है, ये मेरा काम है, ये मेरा friend circle है, ये मेरा colleague circle है. So behave accordingly and own your responsibility. And express करो, मतलब अगर किसी दिन नहीं जमा, talk it openly, tell them, but उसको emotional angle मत दो. Ma'am, I think you simply want to say कि woman needs to be more emotionally intelligent, so that they could able to manage all this situation. Right. Okay, ma'am, great. Ma'am, देखिए आपने अभी बहुत सी बातें की. We had a talk about Glamovel. So मैं जानना चाहूँगा what is Glamovel, what is your product, what is the patent and the books that you have written. थोड़ा आप उसके बारे में हमें बताइए. Yes, thank you. Glamovel वो चाबी है जो मुझे इतने सारे काम करने के लिए मदद करती है, एंड वो भी आसानी से, विच इज लाइक, जैसे आपने बोला कि मैं बहुत मल्टीटास्किंग हूँ, सो ग्लैमोवेल इज लाइक 3 to 30 सेकेंड टूल्स। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। ये अपने आप होना चाहिए। मेरा डाइट अपने आप हो जाता है, मेडिटेशन अपने आप हो जाता है, एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है, एंड देन आई एंटर अ फ्लो स्टेट ऑफ वेलनेस। दैट इज व्हाट ग्लैमोवेल इज। क्योंकि जो गूगल हमें दिखा रहा है वेलनेस, इट इज कि हमें दिखाया जा रहा है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, डाइटिंग करना जरूरी है, या फिर मेडिटेशन करना जरूरी है। पर इमेजिन कि अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे फोकस्ड हूँ। व्हाट इज मेडिटेशन? फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। यूजुअली फोकस हम प्राणायाम पे करते हैं या बॉडी पे करते हैं। इट इज नॉट द माइंड कि मुझे थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि वी कांट कंट्रोल आवर थॉट्स। थॉट्स कम एंड डाई देयर ओन डेथ। एवरी डे हमको 70,000 थॉट्स आते हैं, 70 से 80,000। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड है क्योंकि नॉलेज क्लियर है ये सिस्टम के बारे में। सो ग्लैमोवेल में मेरा एक ही प्रोग्राम है, विच इज ग्लैमोवेल मास्टर क्लास।
मैंने ऑलरेडी 25 किताबें इन द फॉर्म ऑफ वर्क बुक्स, जर्नल्स, बुक्स करके रखी है. अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है तो यू टेक इट डेफिनेटली एंड यू रीड इट. व्हाई? बिकॉज मैं छोटे छोटे कोर्सेज लेके मैं चेंज नहीं करवा सकती तुम में. जी बिकॉज द डिजायर टू चेंज शुड बी ग्रेटर देन द डिजायर टू रिमेन द सेम. मतलब हम किसी को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते, उसमें वो बर्निंग डिजायर आनी चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज मोर देन डाइट एंड एक्सरसाइज, हमारी सांस जो है, एनर्जी, ये पंचतत्व से आती है. तो वो एनर्जी रेगुलेट करना, ब्लड सप्लाई बॉडी का अच्छा रखना, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे रखना, ये हमारी एनर्जीज के लिए ज्यादा जरूरी है. एंड इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है क्योंकि मैं मेरे नेगेटिव थॉट्स में एनर्जी डालती नहीं हूँ. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. हर एक के पास एनर्जी, टाइम और फोकस, ये 3 चीजें लिमिटेड मात्रा में. अगर मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए है तो मैं उसे अच्छे से खर्च करूंगी ना, वेस्ट कर दूंगी. अगर मेरे पास 1 लाख एनर्जी है तो मैं वो एनर्जी नेगेटिविटी में अगर डाल रही हूँ, किसी को जज करने में डाल रही हूँ, रोने धोने में डाल रही हूँ, तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. रादर मैं डिस्ट्रक्टिव थॉट के बजाय कंस्ट्रक्टिव कुछ कर लूं या आराम कर लूं तो मेरी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी. मैं आराम करूंगी तो मेरी बॉडी हील होगी, रिपेयर, रेस्ट, रिजुनेशन ये होगी. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लैमोवेल क्लियर करता है आपके लिए, पहली बात. दूसरी बात, ग्लैमोवेल अलग क्यों है? क्योंकि मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, एवोल्यूशन में यहाँ तक तो हम आ गए, तो मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन जैसे टूल्स है. इसके आगे मिलेनियल्स, जेनजीज में क्या चेंजेस आए, इस पे मैंने रिसर्च किया 2006 से. ठीक है. उस पे मेरा पेटेंट है, नेशनल इंटरनेशनल पेटेंट. और बियॉन्ड आत्मा जो आए हैं, 2 नई चीजें आई हैं, उन पे मैंने 12 टूल्स निकाले हैं. तो दैट इज ग्लैमोवेल. वो 12 टूल्स मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले लोग इसकी जरूरत तो महसूस करें. हम अवेयरनेस में तो आए कि हम अनकॉन्शियसली मॉडर्नाइजेशन में गए. अभी हमें कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा एवरीडे लाइफ में वेलनेस लाने का. वरना मैं सोचती रहूंगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है, क्यों तूने डाइट नहीं किया, क्यों एक्सरसाइज नहीं की, और उससे क्रिटिकल खुद ही होंगी, फिर खुद मेरी एनर्जी और कम होते जाएगी. ये जरूरी है हमें. मैम मुझे पूछना था, ग्लैमोवेल ये कौन से एज ग्रुप के लिए सही है और इज इट फॉर एवरी जेंडर, फॉर मेल फीमेल, आपने सभी के लिए इसे बनाया? यस. जैसे वेलनेस हर एक का हक है, वेलनेस सबके लिए जरूरी है, एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक. वैसे ही ग्लैमोवेल वेलनेस इज फॉर एवरीबडी. जैसे बच्चे हैं छोटे, अभी तो हम स्कूल्स में भी करते हैं ये प्रोग्राम्स, बट स्कूल्स में हम थोड़े लाइट मोड पे करते हैं. 7वीं 8वीं में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा आ जाती है. 18 साल के ऊपर जो बच्चे हैं, 16 से 18 साल के ऊपर से लेके सबके लिए ये जो ग्लैमोवेल मास्टर क्लास है कि नो योर अल्टीमेट ह्यूमन सिस्टम, कि मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर कैसे ऑपरेट करते हैं. जैसे मोबाइल फोन सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, वैसे हम पूरा आपको सिखा देते हैं किस वक्त कहाँ से डिसीजन लेती है बॉडी, क्या क्या फंक्शंस है, थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स क्या है. और एक ही लेयर पे नहीं, हम 5 लेयर्स पे काम करते हैं. फिजिकल बॉडी, इमोशनल, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एस्ट्रल हेल्थ एंड बियॉन्ड एस्ट्रल क्या चीजें हैं उसका एक फेयर अंडरस्टैंडिंग देते हैं. एंड उसको कैसे संभालना है, कैसे टैकल करना है. बस एक बार आप सीख लो. एंड इट इज नॉट अ बिग कोर्स, इट इज लाइक 90 days 90 एक्टिविटीज है, 3 to 30 seconds के, और एक 6 घंटे का एक वर्कशॉप होता है. I was about to ask you कि मास्टर क्लास कितने डेज का रहने वाला है? तो 3 महीने में एक ही बैच होती है उसकी. एंड एक पूरा दिन 6 घंटे का थ्योरी होता है, फॉलोड बाय हर महीने हम मिलते हैं. 90 days के 90 टूल्स होते हैं, सिर्फ 30 seconds के होते हैं वो. ओके. सो 6 month में एक बार मिलना है. मास्टर क्लास विल बी फॉर अ 1 day. 1 day, yes. Okay, very nice, ma'am. Thank you so much for telling me about Glamour Wellness. And definitely जो भी viewers मेरे देख रहे हैं, if they want to make a changes in their life, so definitely आप I'll put the contact number in the description. आप उन्हें contact कर सकते हो for the Glamour Wellness. So अभी हम आगे बढ़ते हैं मैम, and I'm coming down to the last question because you have given perfect, well curated answer to all the questions. Now this is my last question to you. What is the future of women entrepreneurship in India according to you? The future of women entrepreneurship is excellent because हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोल मॉडल्स है, इंस्पायरिंग विमेन पर्सनालिटीज है काफी पहले से, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है अभी. अनदर थिंग इज पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया. बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कोप है, और ये सब जब चेंज हो रहा है तो एनर्जेटिकली भी कोविड के बाद, जैसे कोविड के पहले हम थोड़े एक्वेरियस एरा में रहते थे, अब एनर्जीज थोड़ी शिफ्ट हो गई है. तो एनर्जेटिकली भी जब भी मैं बोलती हूँ ना, मैं 3-4 लेयर्स में बोलती हूँ. एक तो फिजिकल लेयर में भी सब बदल रहा है इंडिया में. ठीक है. गवर्नमेंट भी सक्रिय है अपनी, बहुत अच्छी है गवर्नमेंट पहले से. उसके बाद विमेन को भी बहुत रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग आ रहे हैं. दे आर स्टार्टेड ओनिंग देयर ओन पावर्स.
मेंटल इमोशनल लेयर पे भी काफी क्लैरिटी हम्म। मिल गई है, वैसी मतलब यूट्यूब के जरिए, बुक्स के जरिए नॉलेज Awareness है। एक्सेसिबिलिटी अच्छा आ गया है। जी। उसके बाद स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रल लेयर में जो है, जो एनर्जीज है ना, वो अभी अच्छे लोगों को अपलिफ्ट कर रही है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली अर्थ के गेटवेज ओपन अप हो रहे हैं। तो इसीलिए विमेन के लिए ही नहीं बल्कि मेन के लिए भी काफी अच्छा फ्यूचर है। Okay. मान लो कि जो भी अच्छा है, एक राइट एंगल्स में, अभी राइट एंड रॉन्ग सबके लिए अलग अलग होता है, जी। बट जो भी कंड्यूसिव टू नेचर है, बिकॉज हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी ओन आवर ओन बॉडीज टू द नेचर, ठीक है, उसके अलाइनमेंट में फ्लो स्टेट में जो जा रहा है, जो उसके नेचुरल लेवल में है, उन सबके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है अभी। So first of all, thank you so much, ma'am. Thank you for the crisp, wonderful and insightful answer. Ma'am, अगर आप कुछ वुमेन को एडवाइस देना चाहे at the end of the podcast, that would be really helpful. Yes, so women entrepreneurs do cherish your entrepreneurship, but ये सब करते हुए आपकी womanhood जो है, feminine nature है, उसको दबाइएगा मत प्लीज। तो मेरा एक ही सलाह है सभी women को कि बहुत बार हम देखिए जीन्स या पैंट्स पहनने लग जाते हैं, वी ओन एवरीथिंग, वी फील कि वी शुड डू एवरीथिंग, वी शुड डू ये थोड़ा गलत है, वी चूज टू डू। ये जब आप बोलेंगे ना, तो विमेन देखिए बहुत सारे त्योहार बने हैं, वो विमेन को त्योहार पे हम विमेन को ही सजाते हैं, है ना, विमेन को ही नए कपड़े लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल या हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यू नीड टू एक्सेप्ट एंड चेरिश योर फेमिनिन नेचर। तो उस फेमिनिन नेचर को कहीं मरने मत दीजिए। वो छोटी सी लड़की जो आप में होती है ना, बी लाइक अ गर्ल इनसाइड, यू नो, एक्ट लाइक अ बॉस, बिहेव लाइक अ लीडर। तो ये सारी जो चीजें, ये वाकई में सच है। उस एस्पेक्ट को संभालिए, खुद का न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। अगर हम हमारे बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो खुद को एक बच्चे की तरह ही हैंडल कीजिए, कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसको खाना बना के दे देती थी। तो खुद का ख्याल रखिए। रिमेंबर, मोर देन एक्सटर्नल वैलिडेशन, वैलिडेट योर ओन सेल्फ। खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज द गेटवे टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, क्योंकि सेल्फ लव नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा आप में। चौथी बात है कि किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरों को जज करते हैं, आपके ऊपर भी वो चीज खुद ही आपका मन ले लेता है, एंड यू स्टार्ट गोइंग ईदर इनटू अ विक्टिम मेंटालिटी और इनटू अ गिल्ट माइंडसेट। एंड पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक एवरीबडी अलॉन्ग विद यू, क्रिएट गुड सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। अगर सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स बन नहीं पा रही है तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालिए थोड़ा, यानी 3-4 साल वेट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो देन चेंज द सिस्टम्स। ऑलवेज बिल्ड गुड रिलेशंस अराउंड यू। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू women out there, and wish you a very happy Women's Day. Thank you so much, ma'am. Thank you for coming to my podcast. And I think ये podcast सच में women entrepreneurs और जो भी women inspiration देख रहे हैं उनके लिए helpful रहने वाला है. Thank you so much for all the guidance. Thank you so much. It was wonderful being here. So thank you so much guys for watching this podcast. I hope आपको ये podcast पसंद आया होगा। आपकी जो भी woman friend हो जो entrepreneurship या फिर inspiration उनके life में देख रहे हैं, उनके साथ ये podcast share करना ना भूलें। और साथ ही में please do like, share, subscribe, comment and also press the bell icon for the latest video. तो चलिए मिलते हैं अगले podcast पर। This is Nikhil Maurya from the Nikhil Maurya Show signing off. Bye bye.